सो क्या करें? Good morning. Participants are joining till now. पिछले क्लास में हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में पढ़े थे। उसमें सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है उसका डेफिनेशन भी देखे थे। मशीन लर्निंग क्या है उसका डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये सब चीज हम लोग का थर्ड मॉड्यूल में है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग को जो पता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो भी डेटा का क्लासिफिकेशन मेनली हम लोग करते हैं या लिनियर रिग्रेशन मतलब कुछ प्रेडिक्शन करना। तो ये दो चीज में हम लोगों को पहले से जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उसका क्लास लेवल पता रहता है और जो टेस्टिंग सेट होता है वो उसका क्लास लेवल अननोन रहता है, तो उसी का फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे कि सुपरवाइज्ड मतलब पहले सुपरविजन में ट्रेनिंग हुआ, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के साथ क्लास लेवल के साथ जो डेटा हम लोग को मिला था वो उससे पूरा डेटा सेट का ट्रेनिंग हुआ और मॉडल बिल्ड हुआ। So that's why it is called supervised. After that, जो भी नया डेटा आता है एज अ टेस्टिंग सेट जिसका क्लास लेवल नहीं पता रहता है उसका क्लास लेवल फाइंड आउट करना होता है। That's why it is supervised learning as well. In case of linear regression or logistic regression, it is also called supervised learning. So जैसे कि in case of linear regression, this is the name. What is linear regression? Let's understand. Suppose you have one, just 1 minute. You have one equation. Suppose y equal to 2x plus 5. Y equal to 2x plus 5. तो यहाँ पे आपका x और y का जो वैल्यू है, x और y का वैल्यू अगर प्रोवाइडेड रहेगा, मतलब x को अगर मैं मानती हूँ कि उसका फीचर और y को अगर मैं मानती हूँ कि क्लास लेवल, इफ both the things are given, y and x is given, then you can train the model, right? Suppose x is your 3 and y is your what? Y is your 2. If this is so, then can you build the model? Let's try. So कैसे model build करना है? Suppose you can find out the line. Suppose y equal to 2x plus 5. The line will be something like that. Y divided by 5, y divided by 5 minus x divided by, so if I write just plus x divided by 5 by 2, which is minus 5 by 2. Can you write this? Yes, you can write this equals to 1.
So in this you can write this thing. Let's check 5 delta 5. F5, if 5 came in this side, then it will be 2x. So basically we are getting y minus 2x equals to 5. After that, y divided by 5, y divided by 5 and x divided by 5 by 2. And if I consider the minus in the denominator, then we are going to get the equation like this. So as our y and x, if y and x is given, then I can draw the line. I can draw the line. So y-axis को ये कट कर रहा है 5 पोजीशन 5 में, and suppose x-axis को ये कट कर रहा है 5/2 पोजीशन में. Suppose here, then your line is this. This is your line. ऐसा अगर आपका straight line होता है, तो then at any position, if you don't know, at any position, if you don't know the value of y, but if you are given value of x, suppose x equals to आपको दिया जा रहा है some value. So for that value, you can find out the corresponding y value, right? If x is given at 10, तो 10 अगर आपको मिलता है, then you can find out what will be the value for y. So it will fall into somewhere. So it depends what will be the value of x and all. So this is called linear regression, because using our linear equation you can find out that for the new point what will be, for the new point what will be the level of that data point. तो यहाँ पे अगर x को फीचर माना जाता है और y को लेवल माना जाता है, then you can find out this thing. Okay, so next comes okay, there's some regression algorithm can be used for classification as well, and vice versa. For example, logistic regression is commonly used for classification as it can output a value that corresponds to the probability of belonging to a given class. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन थोड़ा अलग होता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो डेटा का क्या बोल सकता है, उसका रेंज इनफाइनाइट नहीं होता. वो यहाँ पे जैसे रेंज कितना होगा हम लोगों को पता नहीं है, रेंज कैन बी एनीथिंग, बट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन रेंज इज रिड्यूस्ड and it varies 0 to 1. In logistic regression, the range varies 0 to 1. So this kind of equation or this kind of graph we get logistic regression. So whenever we will discuss the logistic regression in detail or linear regression in detail, we will discuss all the things. So in unsupervised learning, यहाँ पे main example बोला गया है ये cluster के लिए. In unsupervised learning, as you might guess, the training data is unlabeled. मतलब ट्रेनिंग डेटा का कुछ लेवलिंग रहता नहीं है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा आएगा और अवेलेबल है उससे बंच बनाया जाता है या क्लस्टर बनाया जाता है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द गिवन डेटा. तो सिमिलरिटी मतलब क्या, फीचर स्पेस में उसका सिमिलरिटी जज किया जाता है. आफ्टर दैट द डेटा को क्लस्टर किया जाता है. Yes, Nilesh, do you want to say something? Nilesh, I saw you raised your hand.
हेलो हेलो Nilesh नहीं Nitesh, sorry Nitesh Pandey, do you want to say something? No, ma'am. Okay, so you raised your hand, so I think you have any question. Well, all of you should write your roll number in the chat box. I saw you have written. Okay, if anyone left, please write your roll number. Okay, so यहाँ पे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का बहुत सारा नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे के मींस क्लस्टरिंग, DB-scan clustering, hierarchical cluster analysis. There are some very powerful clustering algorithm. Based on that, you can apply this algorithm in any data set. जिसका लेवल क्लास लेवल पता नहीं है, for them this clustering is used. We want to support vector machine, SVM, isolation forest. So there are so many unsupervised learning technique algorithms. So we will discuss all about whatever the mention in your syllabus. Based on that we will discuss. यहाँ पे और एक चीज बताया गया है, विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन. तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम के बारे में बोला गया है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हाई रहता है, वहीं पे प्रिंसिपल कंपोनेंट मतलब एक क्या बोला जा सकता है, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है. तो उस डायरेक्शन में कुछ फीचर्स को उठाया जाता है आफ्टर डूइंग सम मॉडिफिकेशन, और वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए हम लोग का जो कुछ मैथमेटिकल क्या बोल सकते हैं कैलकुलेशंस है, उसको हम लोगों को जानना पड़ेगा. नहीं तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक मतलब लाइन में ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. बस इसमें हम लोग को एक चीज याद रखना है कि जो भी यहाँ पे डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब ये है कि वी नीड लेस फीचर as well as इंफॉर्मेटिव फीचर. तो ऐसा कुछ फीचर हम लोगों को चाहिए जिसको देख के फीचर्स का वैल्यू एनालाइज करके क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग किया जा सकता है. तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का आयरिस डेटा सेट में 4 फीचर था, और उस फीचर्स को वो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कुछ लेंथ दे रहा है, विड्थ दे रहा है, पिटल लेंथ, पिटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये जो वैल्यू दे रहा है, इससे अलग अलग फ्लावर को डिस्क्रिमिनेट करना इजी था. लेकिन अगर यहाँ पे कलर करके एक फीचर आ जाता है, सपोज यहाँ पे इस 4 के साथ, ये 4 फीचर के साथ और एक एक्स्ट्रा एक फीचर है, सपोज कलर. तो कलर क्या है कि दोनों फ्लावर के लिए, या यहाँ पे जो 3 टाइप का फ्लावर बोला जा रहा है, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिका और आयरिस वर्जिनिका, इन तीनों का कलर अगर एक फीचर के हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसमें सारे के लिए मुझे कुछ मॉव कलर ऐसा लिखना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑल द फ्लावर्स, द कलर ऑफ ऑल द फ्लावर्स आर क्वाइट सेम. तो सिर्फ फ्लावर का कलर देख के आप ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप नहीं कर सकते हो. तो इसमें से अनइम्पोर्टेंट फीचर हो गया मेरा कलर, और लेकिन यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये सारा इम्पोर्टेंट फीचर है. तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन के टाइम को
एलिमिनेट करना है जो कि अननेसेसरी है और जो इंफॉर्मेटिव नहीं है, और जो रिक्वायर्ड फीचर है जो डिस्क्रिमिनेट करता है क्लास को, वैसा फीचर को कंसीडर करना है. सो फॉर दैट रीजन we can use principal component analysis. This is a very nice technique, but I am not talking about the technique now. I am just mentioning the name. There are so many feature reduction technique or dimensionality reduction technique. Kernel PCA है, locality linear embedding है, फिर T distribution stochastic neighbor embedding है, और भी होता है, जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करके भी फीचर रिडक्शन किया जा सकता है. there are so many approaches on the problems that the approaches are chosen. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोला है. For example, say you have a lot of data about your blog's visitors. You may want to run a clustering algorithm to try to detect proof of the similar visitor. At no point do you tell the algorithm which group a visitor belongs to. It finds those connections with your help. For example, it might notice that 40% of your visitors are males who love comic books and generally read your blog in the evening, but 20% are young sci-fi lovers who visit during the weekend. If you use a hierarchical clustering algorithm, it may also subdivide each group into smaller groups. तो यहाँ पे क्लस्टरिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला है, जस्ट यहाँ पे बोला है कि ग्रुप बनाना या डिफरेंशिएट करना किसको, उस रीडर्स को या ब्लॉग विजिटर्स को. सपोज ऑथर का जो ब्लॉग है उसको कुछ विजिटर्स उसको फॉलो करता है, पढ़ता है, तो कौन सा विजिटर्स उसको देखता है, वो कैसे उसके लिए सिमिलरिटी की बेसिस से कैसे क्लस्टर क्रिएट किया जा सकता है. यहाँ पे बोला है कि कुछ फीचर्स देख के, मतलब कौन कब आके रीड करता है. कुछ ऐसा विजिटर्स मिलेगा जो शाम को ये ब्लॉग पढ़ता है और वो कॉमिक बुक को भी फॉलो करता है, राइट. तो इसके लिए अलग क्लास बनाया जा सकता है, या सॉरी इसके लिए अलग क्लस्टर बनाया जा सकता है. और सेकेंड क्लस्टर में यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम मेल विजिटर्स है जो कि अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि मेल विजिटर्स में अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो एक क्लस्टर बन गया जो कि शाम को इवनिंग में ब्लॉग को रीड करता है, बिकॉज जब भी कोई ब्लॉग रीड करेगा उसका टाइम स्टैम्प स्टोर रहेगा. While 20% young sci-fi lovers who visit during the weekend. If you use a hierarchical clustering हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे एकदम बेस लेवल से सबसे सिमिलर डेटा को एक साथ जोड़ के फिर उसके साथ थोड़ा सा सिमिलर डेटा को जोड़ के हायरार्किकल क्लस्टरिंग यहाँ पे किया जाता है. तो ऐसे करके अलग अलग क्लस्टर बनाया जा सकता है. तो यहाँ पे दो फीचर का एक डायग्राम बनाया हुआ है. They have not mentioned about the name of the feature, बस ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे बोला गया visualization algorithm are also good example of unsupervised learning algorithm. You feed them a lot of complex and high-level data and they output 2D or 3D representation of your data that can easily be plotted. This algorithm try to preserve as much structure as they can, trying to keep separate clusters in input space from overlapping in the visualization so that you can understand how the data is organized and perhaps identify unsuspected pattern. तो यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम के बारे में बात किया गया है. तो उसमें क्या होता है, जो भी अवेलेबल डेटा है उसको प्लॉट किया जाता है 2D या 3D में. तो मतलब फीचर का जो डायमेंशन है वो रिड्यूस करके उस रिडक्शन टेक्निक पीसीए टेक्निक जो बोला गया है वो बाद में हम लोग देखेंगे. बट देयर आर सम टेक्निक्स फॉर यूजिंग दैट टेक्निक इफ द what can I say, the feature space or the number of features are reduced
then it can be represented in diagram format. After forming the diagram, you can see, you can visualize that there are some clusters, there are some data pattern has similar properties, so that they are together. So in this way the clustering can be done. तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे जो हाईलाइट मैं की हूँ जिस क्लस्टर को, यहाँ पे हम लोगों को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे फीचर 1 का वैल्यू मीडियम है और फीचर 2 का वैल्यू लो है ना यहाँ पे। और यहाँ ये जो सेट ऑफ डेटा है इसमें हम लोग को देख के पता चल रहा है फीचर 1 का वैल्यू लेस है, क्योंकि ये एकदम सामने तरफ है डेटा, ये एकदम सामने तरफ है। फीचर 2 का वैल्यू भी इसके लिए लो है, बट ये जो अपर साइड में जो डेटा है इसमें क्या है, फीचर 2 का वैल्यू हाई है और फीचर 1 का वैल्यू मीडियम है। और ये जो लास्ट वाला क्लस्टर यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे फीचर 2 का वैल्यू भी मीडियम टू हाई है और फीचर 1 का वैल्यू मीडियम टू हाई है। ठीक है, फीचर 2 का वैल्यू मीडियम टू इसके लिए और फीचर 1 का वैल्यू भी हो सकता है मीडियम टू हाई। So in this way, data can be separated based on the given data. Okay, फिर यहाँ पे बोला गया है रिलेटेड टास्क इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसा प्लॉटिंग के लिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज नेसेसरी, दैट मीन्स यू नीड टू रिड्यूस द फीचर। क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है हम लोग प्लॉटिंग किए थे पाइथन में, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो आइरिस डेटा सेट था उसका 2 फीचर लेके ही हम लोग प्लॉट कर रहे थे, राइट। सेपल लेंथ पेटल विड्थ या सेपल विड्थ पेटल लेंथ, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब 2 डेटा को लेके हम लोग क्या कर रहे थे, उसका प्लॉटिंग कर रहे थे। तो उसके सिर्फ 2 फीचर है क्या, ऐसा नहीं, एक डेटा सेट में बहुत ज्यादा फीचर रह सकता है, ह्यूज नंबर ऑफ फीचर रह सकता है, यहाँ पे बहुत कम है 4। फिर भी एक बार प्लॉटिंग के लिए मैं 4 का यूज नहीं किया, मैं 2 फीचर का यूज किया। एक फीचर क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस में प्लॉट हो रहा था या एक्स एक्सिस को डायरेक्शन दे रहा था, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्लॉट हो रहा था, और दूसरा फीचर जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्लॉट हो रहा था। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसको प्लॉट किए थे। तो यहाँ पे डेटा जितना सिंप्लीफाइड होगा, डायमेंशन जितना लेस होगा, उतना प्लॉटिंग इजियर होगा, राइट, इन विच द गोल इज। तो डायमेंशनली रिडक्शन में क्या बोला जाता है कि डेटा का डायमेंशन आप भले ही हटा सकते हो, डेटा को छोटा कर सकते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग लूज नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा फीचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेट नहीं करेंगे जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जैसे मतलब 2 क्लास, इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। सपोज आपके पास एक डेटा है, कोई एक ऑब्जेक्ट का, सपोज ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये अगर आपका क्लास लेवल है, तो सपोज क्लास लेवल कोई एक फीचर मैं लिख रही हूँ F1, तो ये टोटल डेटा सेट फीचर और उसका क्लास लेवल मैं दिखाती हूँ। सपोज फीचर का वैल्यू 0.1, 0.3 या 0.5 रहने से सपोज क्लास का वैल्यू हो रहा है आपका 1, और सपोज फीचर का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, सपोज 2, 3, 2.5 ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे क्लास लेवल सपोज मेरा हो गया 0, 0, 0। जैसे कि हम लोग एक में कुछ भी डेटा को फीड करेंगे तो मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू फीड करना पड़ेगा। तो ऐसे आइरिस सिटोसा, आइरिस वर्सिकलर ऐसा नाम लिख के मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, किया तो जा सकता है, that we also did this thing,
बट व्हाट हैपेंस जनरली क्या किया जाता है मशीन लर्निंग में कि जितना क्लासेस होगा एक डेटा सेट में सारे डेटा का, तो उतना नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी क्लास भी हो सकता है और मल्टी क्लास डेटा भी हो सकता है। सपोज आपके पास बाइनरी क्लास डेटा हो जिसमें 2 ही क्लास है, मतलब ऐसा कुछ डेटा पॉइंट होगा, सपोज पॉइंट 1, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट 2, पॉइंट 3, P4, P5, P6. Suppose from P1 to P3 we can see it has the feature F1 and the feature value is very less, that is 0. It varies 0.1 to 0.5. Then the classes are 1. Okay. But जैसे ही जो पॉइंट है उसका फीचर वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे 2, 3, 2.5 हो जाता है तो डिफरेंट क्लास में चला जाता है। सो 0, 0, 0 सपोज उसका क्लास लेवल है, तो ये देख के हम लोग को पता चल रहा है फीचर वैल्यू इज लेस देन दिस डेटा पॉइंट फॉल्स इनटू one class and data point values are more, then data points falls into another class, is 0 class. So using this feature we have to discriminate the points based on their class, right? So that this feature is very much informative. कैसे इंफॉर्मेटिव ये बना कि एक क्लास के लिए वो जैसा वैल्यू देता है दूसरे क्लास के लिए वो बहुत ह्यूजली डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इट इज गिविंग डिफरेंट वैल्यू, ह्यूजली डिफरेंट वैल्यू। तो फीचर का वैल्यू देख के हम लोग को पता कर सकते हैं कि क्लास लेवल क्या हो सकता है। तो आप एक चीज देखना, सपोज मुझे यहाँ पर रेंज मिल रहा है 0.1, 0.3, 0.5। अगर मैं बोलती हूँ कोई पॉइंट आपके पास नया एक पॉइंट आया, तो सपोज उसका फीचर वैल्यू, फीचर 1 का वैल्यू है सपोज 0.15, तो होगा इसका क्लास लेवल? Can you tell me what will be the class level of this data? Hello? Is it possible to tell that what will be the class level of this data? Actually, the class level of this data is supposed to be class 1. Class 1 क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग के टाइम में बोल सकते हैं या बाकी सारा अवेलेबल जो पॉइंट्स है उसको देख के हम पता कर सकते हैं। जैसे 0.15 ये जो रेंज है इस रेंज में आ रहा है फीचर का, जैसे 0.1 to 0.5 के बीच में है, so we can assume, we can conclude that class level of the new coming data point is 0.15. Okay, because we have the discriminative feature that, or very much informative feature, that is F1. Based on this F1 we have taken the decision, so that वही बोला गया है कि जो फीचर का ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कोई फीचर, तो उसको हम लोग लूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कोई भी फीचर, बहुत सारे सेट ऑफ फीचर दूसरा फीचर स्पेस में मान लो मैप हुआ, दूसरा फीचर स्पेस में मैप होने का मतलब क्या है वो भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो उसमें क्या होना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे तो फीचर्स का जो वैल्यू है वो भी ऑल्टर होता है, बट स्टिल it is required that the information should be kept after doing that. तो अभी ये फिलहाल थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, इतना इजी नहीं होगा समझने में, बट धीरे धीरे हम लोग इसको समझ लेंगे। One way to do this is to, यहाँ पे एक चीज बोला गया है, one way to do this is to merge several co-related feature into one. तो सारे co-related features मतलब जो एक ही तरह का फीचर्स है कि क्लास के हिसाब से
उस फीचर का वैल्यू अगर सिमिलरली बिहेव कर रहा है, then we can say the features are correlated. If we have correlated features, then we can ignore, suppose we have 5 correlated features, then we can ignore 4 features and we can just consider 1 feature, because पांचों feature अगर एक ही तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको देता है तो मेरा 5 फीचर रखने का जरूरत नहीं है, मैं एक ही रखूंगी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग इज सेम, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए कार्स माइलेज में बी स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ इट्स एज। तो किसी कार का माइलेज कितना होगा उसका उम्र देख के पता चल सकता है। So the dimensionality reduction algorithm will merge them into feature that represents the car wear and tear. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, for example, so dimensionality reduction algorithm will merge them into one feature that represents the car wear and tear. तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि कार माइलेज जैसे मतलब कार का उम्र जितना बढ़ेगा माइलेज उसका क्या होता है, घट जाता है। So these are strongly correlated. Then we can consider one feature and we can ignore another, and that is called feature extraction. कि बहुत सारा फीचर में से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और कौन सा फीचर को मैं उठाऊंगी। सपोज आपके पास 100 फीचर दिया गया है, among them you are picking 10 features. Okay, you are picking just 10 features. कैसे जो फीचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पिक किए, या सपोज बहुत सारा को रिलेटेड या सिमिलर टाइप फीचर होगा तो क्या करेंगे कि एक फीचर को कंसीडर करेंगे, बाकी सारे सिमिलर फीचर को इग्नोर कर देंगे। Then that is this kind of approaches are called feature reduction or feature extraction. तो यहाँ पे और एक चीज बोला गया है कि your another important unsupervised task is anomaly detection. तो क्या प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट करना है। एक तो हो गया फीचर एक्सट्रैक्शन, then comes anomaly reduction. Let's check what is anomaly reduction. For example, detecting unusual credit card transaction to prevent fraud. Okay, catching the manufacturing defect or automatically removing outlier from dataset before feeding to it another learning algorithm. The system is on mostly normal instances during training, so it learns to recognize them. Then when it sees new instances, it can tell whether it looks like a normal one or whether it is like an anomaly. तो यहाँ पे कुछ एनोमली डिटेक्शन के बारे में बोला गया है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो नहीं चाहिए है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए some instances, that means डेटा में बहुत सारा अननेसेसरी फीचर क्या बोल सकते हैं सैंपल आता है, सैंपल या इंस्टेंसेस। सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस, सेम बोल सकते हैं सैंपल के लिए अलग अलग क्लास हो। हाँ, कि यहाँ पे ऐसे अगर मैं बोलती हूँ P1 का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 है और क्लास लेवल है 1। फिर से अगर पे रहता है, फिर से सपोज आपका P1 कहीं पे हो, यहाँ पे सपोज P1 फिर से मेंशन किया गया है और सपोज यहाँ पे फीचर वैल्यू है सपोज 0.4 और उसका क्लास लेवल हो गया क्या, सपोज यहाँ पे दे रहा है 0। एक चीज देख सकते हो, एक जगह P1 के लिए क्लास लेवल हुआ 1, दूसरी जगह P1 के लिए क्लास लेवल है 0, तो अलग अलग वैल्यू
अलग अलग क्लास मुझे मिल रहा है सेम डेटा पॉइंट और सेम काइंड ऑफ फीचर्स के लिए, देन दिस इज एन एनोमली। क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रेनिंग, जब मैं डेटा सेट को ट्रेनिंग करूंगी तो एक मतलब सेम नाम से अलग अलग इंफॉर्मेशन देने वाले डेटा पॉइंट्स या सैंपल्स या इंस्टेंसेस क्या करेगा, मिसलीड करेगा एल्गोरिदम को, कि किसी जगह वो 1 दिखा रहा है, किसी जगह 0 दिखा रहा है, सो इट विल मिसलीड। सो दिस इज वन एनोमली। तो ऐसा करके बहुत सारा एनोमली रह सकता है, मिसिंग वैल्यू रह सकता है, उसको और उसको एलिमिनेट करना भी ये टास्क होता है बिफोर डूइंग एनी what can I say, before doing any classification or clustering. So these are the all discussion about supervised and unsupervised learning. Then comes semi-supervised learning. Since labeling data is usually time-consuming and costly, you will often have plenty of unlabeled instances and few labeled instances. तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि डेटा कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन जो भी होगा वो लेबल डेटा होने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी आपका सिचुएशन हो सकता है कि कुछ डेटा के लिए आप उसका लेबल अवेलेबल है और कुछ डेटा के लिए लेबल अवेलेबल नहीं है कि कौन सा क्लास में वो है होगा या कौन सा क्लास में उसको रहना चाहिए। तो टोटली अनलेबल्ड डेटा के बारे में हम लोग क्या जाने हैं कि हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं, क्योंकि उसका तो क्लास लेवल नहीं रहता, तो हम लोग उसका सिमिलरिटी डेटा सेट में जितना भी डेटा पॉइंट है उसका सिमिलरिटी देख देख के सिमिलरिटी इन द सेंस रिगार्डिंग देयर बेस्ड ऑन देयर फीचर वी एनालाइज द सिमिलरिटी एंड बेस्ड ऑन दैट वी क्लस्टर देम। ठीक है, तो छोटा छोटा बंच बना लेते हैं कुछ कुछ डेटा पॉइंट का। बट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा पॉइंट हम लोग का रहता है वो सारा लेबल रहता है, तो उससे हम लोग अच्छे से एक मॉडल बना सकते हैं या क्लासिफिकेशन मॉडल बना सकते हैं, जिसमें से कोई अगर एकदम अनसीन कोई डेटा आता है जो सिमिलर टाइप है, मतलब सिमिलर फीचर उस डेटा में है, तो उसका क्लास डिटेक्ट करने के लिए जस्ट मैं उसको मॉडल में फिट कर दूंगी, तो देन it will give the answer. So this is called supervised learning, right? तो supervised और unsupervised का जो mixture है, supervised और unsupervised का जो mixture है, उसमें बोला जाता है कि कुछ डेटा होगा लेबल्ड और कुछ इंस्टेंसेस होगा अनलेबल्ड। So in this way, if this kind of data points are available, then that is called semi. If you want to learn about the data, then that is called semi-supervised learning, right? So data is partially labeled. तो ऐसा बहुत सारा अनलेबल डेटा या लेबल डेटा का मिक्सचर हम लोगों को मिल सकता है। Then we have to proceed using the clustering algorithm, as well as we can apply some classification. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे some photo hosting services such as Google Photos are good example of this. Once you upload all your family photos to the service, it is automatically recognized the same person as shown up in the photos 1, 5, 11 and 11 by another person which shows up in the photos this. तो फोटो नंबर में अगर कुछ सेम आदमी का फोटो रहता है तो वो डिटरमाइन कर लेता है कि मतलब उसको लेबलिंग वो फर्दर कर सकता है कि किसका फोटो ये है। तो दिस इज क्या बोल सकते हैं, दिस इज सेमी सुपरवाइज्ड. This is unsupervised part algorithm of clustering. Now all the system need is for you to tell